بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں ہارون آباد بار ایسوسی ایشن میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد عظیم ارشاد تتلہ صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ امیدوار جنرل سیکرٹری ہارون آباد بار ایسوسی ایشن ہیں۔ آج ہم ہارون آباد بار ایسوسی ایشن کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ جب آپ جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن ہارون آباد بن جائیں گے تو بار کو لے کر آپ کیا ڈیولپمنٹ کروائیں گے؟ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں خیریت ٹھیک ہوں، سے؟ آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ سر، خیریت سے۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی میں نے اپنی ابتدائی تعلیم پنجاب کیڈٹ اسکول فقیر والی سے حاصل کی۔ مڈل میں نے وہاں سے کیا، اس کے بعد مسالی فرینڈ اسکول چشتیاں سے میں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد بی اے کی ڈگری میں نے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ہارون آباد سے کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا LLB اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے کیا۔ جی جناب، وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ جی مجھے بھی شوق تھا اور والد صاحب کو بھی شوق تھا کہ میرا بیٹا وکیل بنے، اور الحمدللہ انہوں نے مجھے بہت پروموٹ بھی کیا۔ اس حوالے سے مجھے ہر جگہ پہ انہوں نے سپورٹ بھی کیا اور ہر لحاظ سے انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ جہاں مجھے ان کی ضرورت پڑی انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا۔ جی ایز اے قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ ایک اچھا قانون دان وہ ہوتا ہے جو اپنے پیشے کے ساتھ لائل ہو۔ سب سے پہلے اس کو اپنے پیشے کے ساتھ لائل ہونا، اس کے بعد محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس فیلڈ میں بہت زیادہ گرومنگ فیلڈ ہے یہ، اس میں بہت زیادہ سٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہی اس میں ہمیشہ خالی ہوتا ہے، سپیس ہوتا ہے اس میں، جو محنت کرے گا وہ ادھر چلا جائے گا۔ بالکل۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہماری سوسائٹی میں وکلا ایک ایسی کمیونٹی ہے جو اس معاشرے کی آنکھ کان ناک سمجھا جاتا ہے کہ ایک وکیل جو ہے وہ جب کچہری میں انٹر ہوتا ہے تو تمام علاقے کے مسائل پہ اس کی نظر ہوتی ہے۔ جس طرح کا بھی مسئلہ بنتا ہے ایک وکیل کی نظر سے گزرتا ہے وہ۔ تو وکلا کو اس میں بہت زیادہ سمجھا بھی جاتا ہے کہ یہ لا نوئنگ بھی ہیں، ان کو قانون کے بارے میں انفارمیشنز بھی ہے، یہ قانون کے حوالے سے گائیڈ بھی کرتے ہیں لوگوں کے مسائل، اور ایک وکیل جو ہے اپنے علاقے کی بہتر نمائندگی کر سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے۔ ٹھیک۔ ہارون آباد بار ایسوسی ایشن میں بار اور بینچ کے تعلق کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہارون آباد بار ایسوسی ایشن میں بار اور بینچ کا تعاون ہمیشہ سے بہت اچھا رہا ہے۔ ہماری ہارون آباد بار ہمیشہ سے ایک پیسفل بار سمجھی جاتی ہے کہ جہاں بار اور بینچ کے درمیان بہت اچھا ریلیشن رہا ہے ہمیشہ سے، جب سے یہ بار وجود میں آئی ہے اس سے اب تک، جب سے ہم 2010 سے 13 سے میں ادھر آیا ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ بہت الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے ہمارے بار اور بینچ کے درمیان۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ یہ اس حوالے سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ عدالتی نظام ایک ایسا نظام بن چکا ہے کہ جہاں پہ ایک سائل جب آتا ہے تو اس کو اپنا حق لینے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنی جاتی ہے۔ عام طور پر ایک سیول کے کیس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نسلیں تک لگ جاتی ہیں لیکن انصاف کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، 2-3 نسلیں جا کے پھر جا کے ایک کیس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اس کا پروسیجر اتنا سلو ہے کہ 4-5 سال نیچے سیول کورٹ میں لگ جاتے ہیں، پھر ہائی کورٹ میں 10 سے 15 سال لگ جاتے ہیں، پھر 20 سے 25 سال آگے سپریم کورٹ میں اپلیٹ کورٹس میں جہاں پہ نا بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس میں تبدیلیوں کی، نئی جو اصلاحات آ رہی ہیں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اس میں۔ بار ایسوسی ایشن ہارون آباد کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ بار ایسوسی ایشن ہارون آباد میں بہت زیادہ مسائل ہیں وکلا کے۔ یہاں پہ خاص طور پہ جو ینگ وکلاز آتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ ارلی سٹیج پہ جب وہ آتے ہیں عدالتوں میں تو ان کو سب سے زیادہ انکم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ 4-5 سال ایک سٹوڈنٹ جب
वैसे तो 15-20 साल लग जाते हैं कि जी। अखराजात करते हुए घर से। जब ये स्टूडेंट लॉ करके फ्रेश ग्रेजुएट आता है तो उसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। 2 से 4 साल 5 साल उसको सेट होने में लग जाते हैं। तो इस स्टेज में बहुत से ऐसे जूनियर्स मेरे दोस्त भाई जो डिसअपॉइंट होकर इस पेशे से फिर पीछे हो जाते हैं कि उनको फाइनेंशियली इश्यूज़ का सामना होता है। तो इस हवाले से मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसमें जो यंग वकला हैं उनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ के हवाले से कुछ इस पे गौर खोज होना चाहिए। उनके लिए अर्ली स्टेज पे उनको को ऐसा अकोमोडेट किया जाए ताकि वो इस प्रोफेशन में मेहनत और लगन से काम करें। ठीक। माशाल्लाह आप उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन हारूनाबाद हैं, तो इलेक्शन जीत कर आपके क्या प्लान्स हैं इस बार को लेकर? जी इंशाल्लाह मैंने अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में अपने आप को बतौर जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार पुट किया है। अभी डिसाइड होना बाकी है, हमारे दोस्तों का फ़ैसला होना है, ग्रुप का फ़ैसला होना है। बतौर कैंडिडेट मैंने अपने आप को पुट कर दिया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा ग्रुप मुझे ऑन भी करेगा, मुझे सपोर्ट भी करेगा, मुझे दोस्त वोट भी करेंगे। अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं डिग्निटी फॉर लॉयर्स वकला की बहबूद के लिए काम करूँगा। वकला को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, अदालतों में वकला को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। तो उनके इस हवाले से बार के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल है। हमारा बार रूम ये फ्रेश बना है, इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है। उस पर डेवलपमेंट के हवाले से अपने वकला के लिए इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करूँगा जी। अपने पैनल के बारे में बताएं, किस ग्रुप से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे आप? ये अभी डिसाइड होना बाकी है, फैसले होने हैं। अभी दोस्तों ग्रुप की मीटिंग हो रही हैं। जी। अभी आम तौर पर बहावलनगर बार में, चिश्तियाँ बार में तो कैंडिडेट्स आ गए हैं, लेकिन हमारी बार तहसील बार है, इसमें चूँकि थोड़े लोग होते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 वीक में ये फ़ैसला हो जाएगा कि किस पैनल से किस ग्रुप से इलेक्शन लड़ना है। ओवरऑल एज अ कानूनदान हारूनाबाद शहर के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हो कि हल होने चाहिए? अमूमन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर है, ये जब से हम पैदा हुए हैं उसी वक्त से सुन रहे हैं कि ये बैकवर्ड एरिया है, हमेशा से ये बैकवर्ड रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा वसाइल की कमी है, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की कमी है, स्कूल कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा इशू है, यहाँ के तालीम का वो मेयार नहीं है जो आम तौर पर अपर पंजाब में और दूसरे अज़ला में है। इसके अलावा जो सड़कों का जो है वो निज़ाम बहुत ज़्यादा, सड़कें बहुत ज़्यादा टूट फूट कर, शहर का जो मेन सीवरेज का बहुत ज़्यादा इशू है, इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये ज़िला हारूनाबाद बनना चाहिए, फैसलाबाद साहब की क्या राय है? ये मेरे ख़्याल में तो हारूनाबाद को भी ज़िला बनना चाहिए। इस हवाले से बहुत ज़्यादा दफ़ा इस पे आवाज़ भी उठाएगी लेकिन वो दब जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हारूनाबाद तहसील जो है डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर सी तकरीबन फोटाबास भी पसमानदा है और हारूनाबाद भी पसमानदा तहसीलों में से गिनी कि इसमें डेवलपमेंट का बहुत कम काम हुआ है जी। इस बार एसोसिएशन में यंग वकला के क्या मसाइल हैं? इस बार एसोसिएशन में यंग वकला को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वकला जो इधर कचहरी में आते हैं उनको सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इशू होता है। जो अर्ली स्टेज पे आते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर बहुत से वकला जो हैं वो फिर इस फील्ड से आउट हो जाते हैं, वो फिर कोई और काम प्रोफेशन में चले जाते हैं, कोई कारोबार कर लेता है, कोई किधर चला जाता है। हालांकि ये बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें मेहनत लगन से बंदा आए तो इंशाल्लाह बहुत ग्रोमिंग फील्ड है, इसमें बहुत सारा आगे जाने के चांसेस होते हैं इस फील्ड में। बिल्कुल। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में कामयाबी मेहनत है। इंसान अगर स्ट्रगल करे, सच्चे दिल से मेहनत करे तो यही उसकी कामयाबी है। और कामयाबी का राज भी यही है कि इंसान अगर दिल लगी से मेहनत करे तो वो कोई भी टारगेट अचीव कर सकता है। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे साथ मेरे वालिदैन, मेरे दोस्तों, मेरे असातिज़ा की मेहनत ना होती तो शायद मैं स्टेज पे ना पहुँच सकता। मैं भी आम एक ज़िम्मेदार घराने से तल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरे दूसरे जो कज़न हैं सारे ज़िम्मेदार से रिलेटेड हैं, तो शायद मैं भी उसी फील्ड में चला जाता या कहीं और चला जाता। इस फील्ड में आने के लिए मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है मेरे दोस्तों ने, मेरे असातिज़ा की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे वालिदैन की दुआओं से, मेरे वालिदैन की सपोर्ट से मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। सूबा बहावलपुर या मुल्तान एज़ अ कानूनदान क्या राय है आपकी? जी मेरे ख़्याल में बहावलपुर सूबा बनना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये रियासत बहावलपुर है, इसने पाकिस्तान में शमूलियत का अख्तियार किया था। इस रियासत बहावलपुर ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस पाकिस्तान में। आप समझिए कि अगर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद आने के बाद पाकिस्तान को एक अर्ली जो पिक किया है वो रियासत बहावलपुर का है।
नवाब सर सादक का बड़ा रोल है इसमें। तो सूबा जो है ये बहावलपुर बनना चाहिए, मुल्तान भी बन जाए कोई इशू नहीं है, छोटे छोटे यूनिट्स पे अगर बन जाए तो ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, ज़्यादा काम होते हैं, ज़्यादा जो तरक्की ज़्यादा होती है। तो बहावलपुर सूबा जो है ना वो लाजमी बनना चाहिए। आपके बेस्ट टीचर कौन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से टीचर्स हैं मेरे बेस्ट, तो जिसमें सबसे ज़्यादा मैं इंस्पायर हूँ मेरे टीचर वो सर सलीम साहब हैं चिश्तिया मसाली स्कूल से, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? जी टूरिज़्म का शौक़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी फ़ील्ड ऐसी है कि इसमें आपको मौका बहुत कम मिलता है, कि इसमें डेली बेसिस पे आपको रूटीन पे आपको वर्क करना पड़ता है, डेली बेसिस पे आपको ऑफिस आना पड़ता है। तो इस हवाले से हमारे यहाँ अगस्त में छुट्टियाँ होती हैं, तो वो भी बस हम आज़ाद कश्मीर का इलाका हमने विज़िट किया है, हमने मरी गिलगित बल्तिस्तान, नारान, कगान, ये सब एरियाज़ में हमने विज़िट किए हुए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? खाने में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो फेवरेट डिश मेरी जो है वो करेले गोश्त जो है ना मैं ज़्यादा खुश होकर खाता हूँ, अच्छी लगती है मुझे। लाइफ में आइडियल किसको समझते हैं आप? मैं अपनी लाइफ में अगर अपना आइडियल समझता हूँ तो वो मेरे वालिद साहब हैं, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर मौके पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जहाँ पे मुझे उनकी अगर मैं आज इस जगह पे हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने वालिद साहब की वजह से हूँ। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज़ अ उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन हारूनाबाद, आपका क्या पैगाम है? मैं इंशाल्लाह अपने दोस्तों को यही कहूँगा कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, आपने मुझे वोट सपोर्ट किया, आपने मेरा हौसला बढ़ाया, तो इंशाल्लाह कभी भी आपको मायूस नहीं करूँगा। दिन रात वकला के लिए, अपनी बार के लिए काम करूँगा इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।